Hello students, welcome in your science class. I am Kapsemis here for making your science easy for you. We are studying the chapter Heat and its effect. In our last video, you have seen what is heat actually and what are the main effects of heat. In this video, we are going to explain these effects of heat. The main effect of heat is expansion. Heat causes expansion. As we see, as the water heats up, some of it overflow and its volume increase. It means heat causes expansion. Suppose that a number of children are standing in a corner of hall. They are moving around a little to talk each other. Suddenly, music is switched on. The children start dancing and moving around more. Naturally, they will spread out more and occupy a large part of the hall. हमें सपोज करना है एक हॉल में बच्चे गैदर हुए हैं पार्टी के लिए और जब म्यूजिक सिस्टम ऑन हो जाता है वो बच्चे क्या करते हैं डांसिंग स्टार्ट करते हैं और इस डांसिंग में वो लार्ज पार्ट ऑफ द हॉल ऑक्यूपाई करते हैं जितना ज़्यादा हो सके उतना पार्ट वो लेते हैं वैसे ही इन द सिमिलर वे when we heat a substance the movement of its molecule increases. This increases the average distance between molecules. Therefore, the space occupied by the molecules, that is, the volume of the substance increases. It is process whether a body expand in either area, volume or shape. When heated, we say that heat causes expansion. To observe this, we will do an activity. For this activity, we need an apparatus, that is ring and ball apparatus. Source of heat also needed in this activity. It is a ring and ball apparatus. Take this apparatus. This apparatus consists of a metal ring and a metal ball. At normal temperature, the ball just passes through the ring. It can pass through this ring. Now heat the ball strongly for about 5 minutes and try to pass this ball through the ring. The ball will stuck to the ring. It will not pass through it. The ball has expanded on heating. Now cool the ball to normal temperature. It will again pass through this ring. It shows that expansion is caused due to heat. जब हमने उस बॉल को हीट दी तो उस बॉल का एक्सपांशन हो गया इसीलिए वो रिंग में से पास नहीं हुआ एक्सपांशन होने की वजह से बॉल का जो साइज है शेप है वो बड़ा हो गया उसका वॉल्यूम चेंज हो गया बिग हो गया इंक्रीज हो गया और इसीलिए वो इस रिंग में से पास नहीं हो सका इट शोज the expansion occurred due to heating.
If you don't have this apparatus, ये apparatus अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो हम एक दूसरी एक्टिविटी देखेंगे। इस एक्टिविटी के लिए आपको लगेंगे 2 wooden blocks and some candles और एक मेटल रॉड लगेगा आपको, a copper rod and a tray containing sand, sand जिसमें है ऐसा एक ट्रे आपको लेना है। और ये सभी थिंग्स जो है वो इजीली अवेलेबल हो सकते हैं। 2 wooden blocks, some candles of same size, बट कैंडल्स जो लेंगे आप वो सभी एक साइज के लेने हैं आपको। कॉपर रॉड, कॉपर रॉड नहीं हुआ तो आयरन रॉड भी चलेगा, लेकिन आयरन को एक्सपांड होने के लिए बहुत ज़्यादा हीट अप्लाई करनी पड़ती है और कॉपर को एक्सपांड होने के लिए कम हीट में भी कॉपर एक्सपांड होता है, इसलिए हमें कॉपर रॉड लेना है। और एक ट्रे जिसमें सैंड भरी है। 1 नीडल जो इजीली अवेलेबल होती है किसी के भी हाउस में, नीडल और छोटा सा मिरर। और इसे एडजस्ट करने के लिए पेंसिल एंड पेपर स्केल, ये पेपर स्केल भी आपको कहीं पे मिल जाएगा और एक पेंसिल जो कि आपके पास होती ही है। ये थिंग्स लेने के बाद क्या करना है, टेक 2 wooden blocks and place them some distance apart. Place the mirror over the second block. सेकंड ब्लॉक पे मिरर रखना है और उस पे टेक अ कॉपर रॉड, फिक्स इट ऑन दिस 2 wooden. उस वुडन रॉड्स पे वो जो वुडन ब्लॉक्स पे वो कॉपर का जो रॉड हमने लिया है वो उस पे रखना है। Put the other end of the rod on the other block and attach a round pencil to the copper rod with the help of needle placed under the rod. अब ये जो सेकंड रॉड है, सेकंड रॉड के पास ये पेंसिल टाई करनी है आपको। कैसे टाई करेंगे, यहाँ पे वो निडल रखेंगे और उस निडल की हेल्प से उस कॉपर रॉड को ये पेंसिल टाई करेंगे, बांध देंगे उसे। नाउ प्लेस द राउंड पेंसिल एज पॉइंटर on a paper scale and arrange the whole setup as shown in this diagram. यहाँ पे जैसे आपको बताया गया है ये पेपर स्केल यहाँ पे ऐसे एडजस्ट करना है जिससे कि ये पेंसिल से उस पर पॉइंट हो जाए। पॉइंट करेंगे, ये रॉड कितना एक्सपांड होता है ये इस पेंसिल के थ्रू पॉइंट आउट होगा। Now heat the copper rod with the help of candles arranged in a tray containing sand. वो जो सैंड वाला ट्रे हमने लिया है वो इसके नीचे रखना है, उसमें ये कैंडल्स रखने, ऐसे रखने हैं कि उस कैंडल की हीट उस कॉपर रॉड को लगे और कैंडल की साइज आपको ऐसी लेनी है कि वो कैंडल्स उस कॉपर रॉड के नीचे बैठ सके। अब इस रॉड को हीट अप्लाई करने के बाद क्या होता है, थोड़ी देर इसे हीट अप्लाई करेंगे, हीट होने देंगे इस कॉपर रॉड को। जैसे जैसे ये कॉपर रॉड हीट होगा द पॉइंटर चेंजेस इट्स डायरेक्शन व्हाइल हीटिंग द कॉपर रॉड। ये जो पेंसिल का पॉइंटर है ये इसकी डायरेक्शन चेंज करेगा। यहाँ पे आपको ये पेंसिल इस साइड में झुके वाली दिखेगी, इसका मतलब क्या है, उस कॉपर रॉड का एक्सपांशन हुआ है और उस एक्सपांशन की वजह से वो पेंसिल जो है वो उसका डायरेक्शन चेंज हो गया है।
और ये जो एक्सपेरिमेंट है इसमें के सभी थिंग्स आपको इजीली अवेलेबल हो सकते हैं घर पे। रिंग एंड बॉल अपैरेटस आपको घर पे नहीं मिलेगा, लेकिन ये वाला एक्सपेरिमेंट आप ट्राई करके देख सकते हैं। ये जो एक्सपांशन है, हीट की वजह से जो एक्सपांशन होता है सॉलिड्स का, इनकी वजह से क्या होता है, समर सीजन में जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं, द रेलवे ट्रैक ओवर विच ट्रेन रन, they are made of iron, and during summer when temperature is very hot, the iron expand, और इस एक्सपांशन की वजह से ये जो आयरन ट्रैक्स है, रेलवे ट्रैक्स है, ये ऐसे हो सकते हैं जैसे आपको इस फिगर में दिख रहे हैं। और इनसे मेनी एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, मेनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। क्या ये हम रोक नहीं सकते हैं? यस, वी कैन स्टॉप दिस। हाउ? ये मेटल होने की वजह से ये हीट से एक्सपांड होता है, लेकिन हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। ये जो ट्रैक है इसके बीच में गैप रखा जाता है। टू अलाउ दिस एक्सपांशन, स्पेस हैज टू बी लेफ्ट बिटवीन टू सेक्शन ऑफ द रेल ट्रैक। If this is not done, expansion of track can cause them to bend. और ये स्पेस रखने की वजह से क्या होता है, समर में जो एक्सपांशन होता है इस ट्रैक का, उस एक्सपांशन की वजह से ये गैप भर जाता है, ये ऐसे। और जब विंटर में इसका कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये लूज हो जाता है, जिससे कोई इफेक्ट नहीं होता है। In this way, we can stop the accidents of rails. And it's the reason why the gaps are kept in the railway tracks. आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, why the gaps are kept in the railway tracks? और इसका रीजन है, समर सीजन में ये एक्सपांड होते हैं। The railway tracks expand in summer due to excess heat, and due to this heat, due to this expansion, the track will bend and serious accident will occur. To stop this, the gaps has left between two section of the rail tracks, so that when they expand, the gap will make over and the accident will avoided. Now you see another example in your surrounding. In a similar way, in steel bridges, one end is made to rest on the roller. ये ऐसे जो ब्रिजेस होते हैं इसके वन एंड में रोलर लगाए वाले होते हैं। क्यों? अगर इस स्टील ब्रिज को फिक्स किया जाएगा उसके एंड तक, ये तो जब समर में ये एक्सपांड होंगे तो उसकी वजह से इस वॉल्स में क्रैक आ जाएंगे, जैसे कि हमने अभी देखा। लेकिन यहाँ पे अगर गैप रखा और उसको रोलर्स लगा दिए तो ये जो वॉल्स है, ये ब्रिजेस के वॉल्स क्रैक नहीं होंगे इस ब्रिज के एक्सपांशन की वजह से। ये गैप रखने की वजह से क्या होता है, इसके नीचे रोलर रखने से और ये गैप रखने से जब ये एक्सपांड होते हैं तो वो इजीली इस स्पेस में एक्सपांड हो जाते हैं और ये वॉल्स क्रैक नहीं हो सकते हैं। आज क्या सीखा हमने? We use heat expansion to make divot bigger. After insertion, they cool and contract, creating a very tight bond.
and we leave gaps between railway tracks so that the rail can expand without damage. This expansion of solid due to heat has one more use. It is used in automatic fire alarm system. The automatic fire alarm system uses the fact that different solid expand by different amount on heating. अब हीट की वजह से सॉलिड एक्सपांड तो होते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले एक्सपेरिमेंट में बताया कि आयरन रॉड को एक्सपांड होने के लिए टाइम लगता है और कॉपर रॉड जो है वो उससे फास्ट एक्सपांड होता है. तो ये जो डिफरेंट मेटल्स के एक्सपांडिंग टाइम है वो चेंज्ड है. इसे बोला जाता है मेल्टिंग पॉइंट. तो ये अलग अलग होते हैं और इसी का यूज करके ऑटोमेटिक फायर अलार्म बनाए गए हैं. द अलार्म कंटेन्स टू मेटल स्ट्रिप्स, वन ऑफ आयरन एंड अदर ऑफ ब्रास. इस मेटालिक अलार्म में, ऑटोमेटिक अलार्म में 2 मेटल स्ट्रिप यूज किए वाले होते हैं. 1 मेटल स्ट्रिप जो है वो आयरन की होती है और सेकंड मेटल स्ट्रिप जो है वो ब्रास की होती है. फर्मली बोल्टेड टुगेदर, उसे फर्मली बोल्ट किया जाता है, टैग किया जाता है. ब्रास एक्सपांड मोर देन आयरन ऑन हीटिंग. अब आयरन और ब्रास का हीटिंग से एक्सपांशन कैसे होता है? आयरन जो है वो एक्सपांड होने के लिए टाइम लगता है और ब्रास जो है वो बहुत फास्टली एक्सपांड होता है. Therefore, when this metallic strip get heated because of fire, it burn on the side of iron. ये जो मेटालिक स्ट्रिप है, जब किसी प्लेस पे फायर लग जाता है और वहां पे ऑटोमेटिक अलार्म लगाया गया है, तो इस अलार्म की वजह से क्या होता है? देखो, इस अलार्म में ये जो है, ये ब्लैक वाली ये आयरन स्ट्रिप है और ये येलो वाली जो दिख रही है आपको, ये ब्रास स्ट्रिप है. जब फायर अलाउ हो जाता है, फायर स्टार्ट हो जाता है, ये ब्रास की स्ट्रिप जो है वो एक्सपांड होके बेंड हो जाती है. ऐसे आयरन को बेंड होने के लिए टाइम लगता है, लेकिन ब्रास फास्टली बेंड होता है, फास्टली एक्सपांड होता है. आयरन एक्सपांड होने की वजह से ये जो स्ट्रिप है, ये ब्रास एक्सपांड होने की वजह से ये जो स्ट्रिप है ये आयरन के साइड को ऐसे बेंड होगी और आयरन के साइड को ये पॉइंट लगाया वाला होता है, ये स्ट्रिप उस पॉइंट को टच होगी और इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट हो जाएगा. यहाँ पे ये बैटरीज लगाए गए होते हैं और ये अलार्म लगाया है. ये बैटरीज यहाँ पे लगाए हैं, मतलब ये इलेक्ट्रिक सर्किट है. यस, और जब ये पॉइंट यहाँ पे ज्वाइन हो जाता है तो ये इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट हो जाता है. ये हमने लास्ट ईयर इलेक्ट्रिक सर्किट्स में देखे थे, कंप्लीट सर्किट, है ना. तो ये ज्वाइन होने से ये सर्किट जो है कंप्लीट हो जाता है और ये अलार्म स्टार्ट हो जाता है रिंग करने के लिए. यस, अलार्म में रिंगिंग ऑकर हो जाती है और जैसे ही रिंग ऑकर होती है, फायर बुझाई जाती है, तो बाहर की हीट कम होने की वजह से इस ब्रास स्ट्रिप का फिर से कॉन्ट्रैक्शन होता है और वो इस टाइप में फिर से इस सर्किट से डिस्टेंस बना देता है और अलार्म स्टॉप हो जाता है. यस, दिस इज द वे हाउ automatic fire alarm works.
When this biometallic strip get heated because of fire, it bend on side of iron. As it bends, the circuit of the electric bell is completed. The bell start ringing to give alarm. As the fire is put out, the strip gets cooled and straightened again. This causes the circuit to break and stop and switch off the alarm. Thus the automatic fire alarms work. Some other uses of using this expansion of solid due to हीट इज अपने डेली लाइफ में हम ग्लास जार यूज करते हैं और उस ग्लास जार का लीड जो है वो ग्लास का नहीं होता है, वो मेटल से बना होता है। कभी कभी क्या हो जाता है, वो जो जार का लीड है वो बहुत ही जैम हो जाता है, फिट हो जाता है। वी कैनॉट ओपन इट इजीली। टू ओपन सच metal caps on glass jars or glass bottles, pour a hot water over the metal cap. The metal cap expand on heating and loosens, and we can easily open the cap of that glass jar or glass bottle. Look here. The glass jar is kept under hot water and the lid become loose. But see what happened. The glass jar is broken due to that hot water. Excess hot water की वजह से वो ग्लास जो है वो क्रैक हो गया, ब्रेक हो गया। अब यही अवॉइड करने के लिए क्या किया जाता है, देखो, when very hot liquid is poured in a glass tumbler, the tumbler sometimes cracks. What can we do to avoid this? This happens because the inner wall gets heated first and expand, but the outer wall remain unchanged. The resulting strain cracks the glass. These days, however, special type of glass which expand very little when heated are available. Due to their low expansion, they do not crack even if very hot liquid is poured in them. One of such glass is Pyrex glass. So many apparatus in laboratories are made from Pyrex. Look, this test tube, it is heated by fire. After heating, put it in water. It will be cracked. See this? It is cracked. It means it is simple glass test tube. Now, look at this Pyrex glass test tube. If we heated this Pyrex glass test tube, and dip it in cool water, after excess heating and cooling, this Pyrex glass will not break. This bend only. It means Pyrex is very strong against heat. It cannot be break due to heat. Here in this video, we have learned about the expansion effect of the heat.
The other effects we will see in next video.